Students, hope you all are good and doing well at your home. Myself Diksha Rai. This is a subject teacher of science from LPM Public School, which is situated in Kola Bazar, Gorakhpur. So my dear students, in this video today we are going to discuss about chapter number 5, that is solids, liquids and gases. In your previous class, you have already read about this chapter and you have a lot of information about this chapter like solid, liquid and gases, but still today we are going to again revise this chapter for your periodic assessment term 2. So now first what will we do? First we will read this chapter with correct pronunciation. So as you know that water exists in different forms. Identify the three forms of water shown in the pictures given below. Write the name of each form in the space provided. So on your page, as you can see, there are given three pictures. This is ice cubes and a bowl which is filled of water, and again a glass filled with water, and you can see it is raining. So do you know that what is the state of ice cube? The state of ice cube is that solid, and the spelling of solid is that SOLID. And now this state of liquid or gas. A bowl with fill of water. This state is liquid, and when we boil the water, then this is the state of gas. And now again this is liquid and this is liquid or gas. Different things exist in different forms. Some exist as solid, some as liquids and some as gases. Let us learn more about solids, liquids and gases. Different things exist in different forms. Some exist as solids, some as liquids and some as gases. Let us learn more about solids, liquids and gases. So now we are going to discuss about the first topic from your chapter number 5, that is solid, liquid and gases. Things such as pen, pencil and eraser have a fixed shape or size. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि पेन, पेंसिल, इरेज़र, डस्टर, टेबल, फैन एंड ऑल, ये सारी चीज़ें जो हैं हैव अ फिक्स्ड शेप और साइज़. इनका एक सुनिश्चित आकार होता है, उनका एक सुनिश्चित साइज़ होता है. जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पेन होता है उसका एक फिक्स्ड शेप होता है. ऐसा तो होता नहीं है कि पेन जो है वो कभी दूसरे साइज शेप में है, कभी दूसरे साइज शेप में है. दे डू नॉट फ्लो एंड कैन नॉट बी पोर्ड इनटू कंटेनर. सच थिंग्स आर कॉल्ड सॉलिड्स. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सॉलिड्स बोलते हैं, ठोस बोलते हैं. व्हेन सॉलिड्स आर ग्राउंड टू अ पाउडर, they can flow through holes of containers when sprinkled. As example, talcum powder, salt and paper. Sand also moves inside an hourglasses. Containers when sprinkled, as example, talcum powder, salt and paper. Sand also moves inside an hourglasses. So now I am going to again revise this topic for you. Things such as pen, pencil and eraser have a fixed shape and size. They do not flow and cannot be poured into containers. Such things are called solids. When solids are ground into a powder, they can flow through holes of containers when sprinkled. As example, talcum powder, salt and paper. Sand also moves inside an hourglasses. Now we are going to discuss about liquids. Things such as water, oil and milk do not have a fixed shape. They flow easily and take the shape of the container they are poured in. Such things are called liquids. Things such as water, कुछ चीज़ें जैसे कि पानी, ऑयल तेल एंड मिल्क दूध,
डू नॉट हैव अ फिक्स शेप, इनका कोई भी एक सुनिश्चित आकार नहीं होता है। दे फ्लो ईजिली, वे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, बह सकते हैं। एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, और वो उस कंटेनर का आकार ले सकते हैं। दे आर पोर्ड इन, उन्हें हम जिस किसी भी कंटेनर में रखेंगे। सच थिंग्स आर कॉल्ड, और कुछ चीज़ों को हम इस प्रकार की चीज़ों को हम लिक्विड्स कहते हैं, द्रव कहते हैं। जैसे कि पानी है, पानी को अगर हम ग्लास में डाल दें तो वो उस शेप का हो जाता है, और अगर ठीक उसी पानी को हम ग्लास से निकाल के बाउल में डाल दें तो वो बाउल की शेप का हो जाएगा। तो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं उनका एक कोई फिक्स्ड शेप, उनका कोई एक सुनिश्चित आकार नहीं होता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अब हम सॉलिड और लिक्विड के बीच में क्या अंतर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट डिफरेंस इज दैट सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप और डेफिनेट शेप। सॉलिड का एक कोई निश्चित आकार होता है। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, सॉलिड जो होते हैं, जो ठोस होते हैं, जो चीज़ें ठोस होती हैं वो बहती नहीं है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिक्विड्स। लिक्विड्स डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप, और लिक्विड्स का जितनी भी लिक्विड चीज़ें होती हैं, लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं, उनका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, वो उस बर्तन का शेप ले लेती हैं, आकार ले लेती हैं, उन्हें हम जिस किसी भी कंटेनर में रखते हैं। लिक्विड्स फ्लो ईजिली, और जो लिक्विड होते हैं वो ईजिली आसानी पूर्वक बह सकते हैं, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। जैसे कि आइस है, आइस क्यूब है, बर्फ़ वाली चीज़ है, बर्फ़ है। अब बर्फ़ को अगर हम रेफ्रिजरेटर से निकाल के बाहर रख दें तो वो एक जगह से दूसरी जगह तक बह के तब जाएगी जब हम उसे निकाल देंगे, उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, जब वो पानी के रूप में आ जाएगा, लिक्विड के रूप में। एज ए एग्ज़ाम्पल, पानी के 3 स्टेट होते हैं। कितने होते हैं? तो पानी जो होता है वो अलग अलग स्टेट्स में होता है। जैसे कि अगर हम सिंपल वाटर को, नॉर्मल वाटर को रेफ्रिजरेटर के अंदर डाल के रख दें, फ्रिज के अंदर हम उन्हें डाल के छोड़ दें तो वो आइस बन जाते हैं। क्या बनते हैं? आइस बनते हैं। और फिर अगर उन्हीं आइस, और वो आइस जो है वो तब कौन सी स्टेट में होगा? सॉलिड में होगा, क्योंकि उसका एक फिक्स्ड शेप बन जाएगा। जिस कंटेनर में डाल के पानी को हम रखेंगे उस कंटेनर के शेप का सॉलिड आइस जो है वो बन जाएगा। एंड देन दूसरी स्टेट में अब हम देखेंगे, अगर हम उसी आइस क्यूब को रेफ्रिजरेटर से निकाल के बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दें तो वो आइस क्यूब मेल्ट होके, मतलब कि धीरे धीरे पिघल के पानी बन जाएगा। और जब वो लिक्विड बन जाएगा तो लिक्विड जो है बेटा, लिक्विड कैन फ्लो ईजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो लिक्विड है वो एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से बह के जा सकते हैं, अर्थात यहाँ से वहाँ हो सकते हैं। एंड देन अगर हम सेम वही वाटर को हीट करें, गर्म करें, बॉयल करें तो वो क्या होंगे? वाटर वेपर बनेंगे, गैस होंगे। तो वैसे ही सॉलिड हैव एन अ फिक्स्ड शेप और डेफिनेट शेप। सॉलिड का एक सुनिश्चित आकार होता है। सॉलिड डू नॉट फ्लो, सॉलिड्स जो होते हैं, जो ठोस होते हैं, वो फ्लो नहीं करते हैं, बहते नहीं हैं। लिक्विड्स डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप, और लिक्विड का कोई एक निश्चित आकार, साइज़ नहीं होता है, क्योंकि हम उन्हें जिस किसी कंटेनर में डालेंगे वो उसी शेप के बन जाएंगे। लिक्विड्स फ्लो ईजिली, वो आसानी से फ्लो करते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गैसेस। अ थिंग दैट हैज़ नो शेप और साइज ऑफ इट्स साउंड इज कॉल्ड अ गैस। अ थिंग, एक वस्तु, दैट हैज़ नो शेप, जिसका कोई शेप, जिसका कोई आकार, जिसका कोई साइज नहीं होता है, आउन इज कॉल्ड अ गैस, उसे हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। वाटर वेपर इज अ गैस। वाटर वेपर क्या है? एक गैस है। वाटर वेपर इट मीन्स वाष्प। मोस्ट गैसेज कैन नॉट बी सीन। अधिकतम मात्रा में वो गैसें, बहुत सारी ऐसी गैसेज होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। गैसेज आर ऑल अराउंड अस, एज यू नो। गैसेज जो हैं बेटा वो हमारे चारों तरफ हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज, और जो एयर है जिन्हें हम लेते हैं, जिनकी वजह से हम जी रहे हैं, एयर, वाटर, द हीट ऑफ द सन एंड ऑल,
एयर बहुत सारी गैसेस का मिश्रण होता है। बहुत सारी गैसेस से मिलके क्या बनते हैं? एयर बनते हैं। एयर में ऑक्सीजन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एयर मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। और जो हवा होती है बेटा वो क्या करती है? गति करती है एक जगह से, एक स्थान से दूसरी जगह तक। और मूविंग एयर इज़ कॉल्ड वाइंड। और एयर के मूविंग करने को, हिलने को, डुलने को ही हम क्या कहते हैं? वाइंड कहते हैं, हवा कहते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेम टॉपिक। We breathe in air that contains a gas called oxygen. We breathe in air. हम क्या करते हैं? हम हवा को सांस लेते हैं that contains, जिनमें मिले होते हैं, जिनमें शामिल होते हैं एक गैस called oxygen. उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन कहते हैं। All living things need oxygen to live. जितने भी सजीव लोग हैं, जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं, उन्हें जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की होती है। All living things need oxygen to live. Like liquids, gases can also flow. We breathe in air. As you can see in your homework copy and classwork copy, you have already draw a picture like a girl. She is breathing in the fresh air that is called oxygen. And now we are going to discuss about, let's remember, short the following, write S for solid, L for liquid and G for gas. As you can see, there are a bank of river. This is liquid because water. Number second, sharpener. This is solid. And kettle, tea kettle. Gas, gases निकलेंगे यहाँ से. A hole which is passes from gas. Ice cream cone, this is also solid. And number fifth, a glass of water, liquid. Number 6, a cap of bottle, this is also solid. And now we are going to discuss about change to form. Water freezes to form ice. वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म आइस. जो वाटर होते हैं वो फ्रीजेस होते हैं, वो जमते हैं टू फॉर्म आइस. किसके रूप में? आइस के रूप में. एज यू नो, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले बताया कि जब हम सिंपल पानी को, सिंपल वाटर को हम फ्रिज में रख देंगे, रेफ्रिजरेटर में डाल देंगे, तो वो फ्रीजेस होंगे. और फ्रीजेस होंगे कौन से रूप में बनेंगे? आइस बनेंगे, बर्फ बनेंगे. आइस मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर. और जब आइस क्या होगी बेटा? पिघलेगी, तो वो कौन से रूप में आएगी? पानी के रूप में. एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, ये आपके डिवाइन लाइफ में, आपके जीवन में ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं. ये सब चीज़ें हैं, ऐसी हैं जो आपको बताने की या फिर मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. आप खुद से ये चीज़ें जानते हैं, बट स्टिल फिर भी मैं आपको बताऊँगी. आइस मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर. आइस जब पिघलते हैं तो वो कौन से रूप में आते हैं? वो पानी में आते हैं. व्हेन वाटर इज़ हीटेड लॉन्गर, स्मॉल बबल्स स्टार्ट फॉर्मिंग. और जब पानी को हम बहुत अधिक मात्रा में गर्म करेंगे, उबालेंगे, स्मॉल बबल्स स्टार्ट फॉर्मिंग, तो छोटे छोटे बबल्स जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड बॉयलिंग. और इस विधि को हम क्या कहते हैं? बॉयलिंग कहते हैं. स्टीम राइजेस अप फ्रॉम बॉइलिंग वाटर. और जो उबलने वाला पानी है उससे क्या उठने लगते हैं? स्टीम, भाप निकलने लगती है. स्टीम इज़ वाटर इन द फॉर्म ऑफ अ गैस. स्टीम भी बेटा एक पानी का ही रूप है, जो किस में पाई जाती? गैस के रूप में पाई जाती है. द प्रोसेस बाई विच वाटर चेंजेस इनटू स्टीम ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन. This is a very important topic for all of you, my children. The process by which water, वह विधि जिसके द्वारा वाटर चेंजेस, पानी को बदलते हैं, इनटू स्टीम, कौन सी दिशा में, कौन सी कंडीशन में? स्टीम में. ऑन हीटिंग, गर्म करते हुए, इज कॉल्ड इवेपोरेशन. गर्म करते हुए जब हम पानी को स्टीम में चेंज करेंगे, स्टीम में बदलेंगे, तो उस विधि को, उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू अगेन रिवाइज दिस टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू. द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस इनटू स्टीम ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन. इफ यू होल्ड
अ लीड और अ प्लेट एबव बॉइलिंग वाटर, यदि आप कोई प्लेट या फिर कोई ढक्कन आप बॉइलिंग वाटर, जो पानी बॉयल कर रहा है, जो पानी उबल रहा है और उसके अंदर से स्टीम निकल रहा है, यदि आप उनके ऊपर कोई ढक्कन, कोई कवर लगा देते हैं, द स्टीम टचेस द लीड, तो जो स्टीम है, जो भाप है बेटा, वो किसको छूती है? जो ढक्कन, जो कवर आपने लगाया हुआ है उनको। द स्टीम देन कूल्स डाउन, और जब भाप, जो स्टीम है, जब वो ठंडी हो जाती है, एंड चेंजेस इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, तो वो पानी की बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में बन जाती हैं। दिस इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। मैं आपको बताऊं कि इवेपोरेशन क्या होता है। जब हम पानी को स्टीम में बदलते हैं, गर्म करते हुए, जब हम पानी को बॉयल करते हैं, हीट करते हैं, और जब वो पानी से स्टीम में बदलेंगे तो उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलेंगे। और कंडेंसेशन हम किसे बोलेंगे? कंडेंसेशन हम उसे बोलेंगे कि जब स्टीम ठंडी होके वापस से टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स बनती हैं, तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलेंगे। स्टीम कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर, स्टीम जो है वो कंडेंसेस होती हैं और कौन से रूप में बनती है? पानी के रूप में। नाउ the three forms of water, solid, liquid and gas. As you know, there are three forms of water, solid, liquid or gas, can change from one to another by heating or cooling. और इन तीनों स्टेट को बेटा हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं हीटिंग और कूलिंग, गर्म करके और ठंडा करके हम इनके रूपों को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। जैसा कि ये एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताया, आइस है, जब हम ऑन हीटिंग इसे गर्म करेंगे तो ये पानी बनेगी, और फिर जब हम इन्हें गर्म करेंगे तो ये बेटा आइस है, और जब हम इसे ठंडा करेंगे तो ये वाटर बनेंगे, और फिर जब इन्हें हम गर्म करेंगे तो ये स्टीम बनेंगे, और वापस से जब इन्हें हम ठंडा करेंगे तो ये वापस से पानी बन जाएंगे, और फिर से जब इन्हें हम कूलिंग करेंगे, फ्रिज में रख देंगे तो ये आइस बन जाएंगे, जैसा कि आपको पता है। एक बार फिर से ये डायग्राम को मैं आपको समझाऊंगी, because this is a very important diagram. This diagram is basis from your whole chapter. Like as you can see, there are a bowl which is full of ice cubes. When you are hitting, then it is changes the form of water, and when you are on hitting, then it is changes in steam. और आप जब इन्हें फिर से ठंडा करेंगे तो ये वाटर के फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, एंड then if you are again on cooling in a refrigerator, it is also changed into ice cubes. This is the changes of forms of water. And now we are going to discuss about the last topic from your chapter, that is solid, liquid and gases. The process by which a solid changes into a liquid on heating is called melting. The process by which a solid changes into a liquid on heating is called melting. The process by which a liquid changes into a gas on heating is called evaporation. The process by which a gas changes into a liquid on cooling is called condensation. The process by which a liquid changes into a solid on cooling is called freezing. This is a very important point for all of you. I am going to again revise this topic for you. The process by which a solid changes into a liquid on heating is called melting. The process by which a liquid changes into a gas on heating is called evaporation. And the process by which a gas changes into a liquid on cooling is called condensation. The process by which a liquid changes into a solid on cooling is called freezing. From this topic your chapter has completed, and I hope you will revise the exercise of chapter number 5, that is solid and liquid gas, and I will send you the teaching notes of this chapter in your WhatsApp group, and you will write this teaching notes in your PC copy. When your school will reopen, I will check your PC.